Welcome back. Ranveer Elabadia is back. He posted a video called "Let's Talk" and let's look into it. Let's see what he has to say. And me being a psychologist, all I can say, first of all I can do is pray for him. Pray for him that he recovers from whatever financial losses, whatever reputational losses he has done. And secondly, what I can do is मतलब understand the introspection behind his eyes, what he's actually trying to say in his statement, latest statement. तो एक बार देखते हैं, उसके बाद we will discuss about this. नमस्ते दोस्तों। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सारे सपोर्टर्स को, सारे वेल विशर्स को थैंक यू। आपके पॉजिटिव मैसेजेस ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि ये फेज़ बहुत मुश्किल था। खुलेआम ऐसे वायलेंट थ्रेट्स, इतना ज़्यादा ऑनलाइन हेट्रेड, इतने सारे मीडिया आर्टिकल्स, इतना कुछ देखा और उस सब के आई बिलीव यू ऑल अक्नॉलेज कि बहुत ही ज़्यादा ओवर द बोर्ड था एंड वॉज कम्प्लीटली अ मीडिया ट्रायल, कम्प्लीटली अ पब्लिक ट्रायल. एंड जो इससे पहले रिया इसके साथ भी हुआ था जब सुशांत पास्ट अवे, which is now confirmed by the CBI to be a self harm case. बट रिया के साथ जितना भी हुआ, जितना भी स्लैंडर हुआ, वो जो उस टाइम पे हुआ था रणवीर, अपूर्वा और अपने आशीष के साथ भी, इनफैक्ट समय के साथ भी, समय हैड टू लाइक डिसअपियर फॉर अ वाइल, इतना बुरा हुआ था उसके साथ. तो it is all bad. Media trial is all bad altogether. We can understand that, and I can understand from his way, his posture, the the volume of his voice, that he's like, first of all, genuinely deeply sorry, and secondly, he just wants to get over with this. His family was threatened, his mother's clinic was like trespassed, he got threats, his family got threats, his entire work got like hampered for what, 2 months now, 1 or 2 months now. So it's a stressful thing, and I can sense a depth in his voice in this apology video. के बीच आपके डीएम्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। जितने टीआरएस के गेस्ट्स ने रीच आउट करा है, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स, उन सारों को भी थैंक यू। Talking about that, I think he should absolutely stop like bringing on politicians to his podcast. दो रीजंस है जिसकी वजह से ये चीज़ इतना एग्जैजरेट हुआ है. आशीष के साथ जो हुआ, दैट इज़ अ कंप्लीट जेनजी थिंग, एंड ही गॉट कॉट इन द क्रॉस फायर, ही वॉज कोलैटरल डैमेज. समय हैड दिस टेम्पलेट गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अपूर्वा का बिहेवियर आज भी चेंज नहीं हुआ है. इस बेचारे के साथ जो हुआ वो ये हुआ कि ही हैज़ हैड दैट रेपुटेशन ऑफ बीइंग द गुड गाय. ही वॉज द गुड बॉय ऑफ इंडियन यूट्यूब, एंड no matter how much he tried to make fun of himself by like being in Carrie's video or like acknowledging Carrie doing a caricature on him way back, जब उसने सदगुरु का भी करा था, that was all fine, but he brought on so many like spiritual gurus and so many politicians into his podcast that he became a family name. मेरे घर पे भी एक टाइम पे अच्छा खासा बात होता था कि ये रणवीर इलाहाबादी के पॉडकास्ट का क्लिप है, ये देख, इससे तुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चलेगा, या ये वाले मिनिस्टर आए हैं इसके पॉडकास्ट में. तो लाइक आई वॉज नॉट डिस्कवरिंग दोज थिंग्स, माई पेरेंट्स वर डिस्कवर, मतलब मेरे घर के लोग, द एल्डर्स ऑफ द फैमिली वर डिस्कवरिंग दोज थिंग्स. तो ही हैड केटर्ड टू लाइक a majority of elder population, and this entire outrage is out of elder population. हमारे जनरेशन में से we are very sensitized. We have seen a lot of Instagram content, and we have seen dark comedy, dark jokes a lot of times so far, AIB के टाइम से लेके आज तक. बट द एल्डर्स आर नॉट प्रिवी टू what's been going on. तो अभी कुणाल कामरा हो गया, अभी एक और किसी के ऊपर केस हुआ है, ये वाला जो केस था. ऑल ऑफ इट इज जस्ट elderly people getting their butt hurt, and like that outrage, that side of the outrage. I'm not saying that's wrong from their perspective. It's not, because they're not privy to that thing, right?
it's wrong. It was wrong on his side to like to allow himself to be in that situation. And then what he did. Oops. ज़िंदगी के सबसे लो मोमेंट्स में आपको ये पता चलता है कि आपके रास्ते में सिर्फ सफलता आपके साथ नहीं चलेगी, आपको फेलियर का सामना करना होगा। इसलिए आज मैं बस दिल की बातें आपके सामने पेश करूँगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने इतने सालों तक हमें हेल्प किया है। हर हफ्ते 2-3 वीडियो रिलीज़ किए हैं पिछले 10 सालों से ब्रेक लिए बिना। ये एक फोर्स्ड ब्रेक मिल गई, ठहराव के साथ जीना सीखा। ये जाना है कि इतने सारे भारतीय हमें परिवार का एक सदस्य मानते हैं। इतने सारे A little thing that जो मैंने नोटिस करा है that he still has that mindset of leadership. He still has that mindset of hustle. अभी भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है इसकी बातों से कि मतलब सक्सेस के साथ फेलियर भी होता है, एक दिन भी हमने ब्रेक नहीं लिया, ये वाली चीज़ें। तो आई थिंक थोड़ा सा उसमें ट्वीक करा जा सकता था। ही कुड नॉट मतलब ही इफ़ ही हैड दैट चॉइस टू नॉट ब्रिंग दीज थिंग्स अप, ही कुड हैव अवॉइडेड दीज थिंग्स, क्योंकि ये ओवरऑल मैसेज को हेल्प नहीं कर रहा है। थोड़ा सा स्नॉबिश लग रहा है बट इट्स फाइन। उसका फोर्टे ही ये है, रणवीर अलाहाबादिया का फोर्टे ही ये है। ही हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट लीडरशिप एंड हसल एंड ऑल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। तो वो उसके दिमाग में बैठ चुकी है वो चीज़ें, तो वो ब्रिंग अप हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन लाइक लुक पास दिस बिकॉज ही इज़ जेन्युइनली ट्राइंग टू से सॉरी। लोग मुझे बेटा मानते हैं, इतने सारे लोग मुझे एक भाई मानते हैं। मेनली उन सारों को सॉरी। आने वाले 10, 20, 30 सालों में जब तक भी कंटेंट क्रिएट करूँगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कंटेंट क्रिएट करूँगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं ये समझाऊँ कि मेरे शोल्डर्स पर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर मुझे परिवार का सदस्य मानते हो, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इतने सारे बच्चे भी हमारा शो देखते हैं। ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेरा वर्क कैरी ऑन करूँगा। आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स यू। मेरे साथ ही इज़ जेन्युइनली सॉरी, ही इज़ जेन्युइनली सॉरी एंड ही अंडरस्टैंड्स कि इससे पहले जो कॉमेडी मेरा फोटे नहीं है वाला जो अपॉलॉजी आया था इसका, दैट वाज इन अ हरी। ही हैड टू लाइक डू डैमेज कंट्रोल बाय एनी मीन्स एनी हाउ। उस टाइम पे देर वॉज नो ब्रेक, देर वॉज नो लाइक थॉट बिहाइंड दैट अपॉलॉजी। एंड ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड अगर मेरे साथ भी कुछ हो रहा है और मुझे लगता है कि आई एम एट दैट इन द रॉन्ग एंड ऑफ दैट थिंग, आई वुड हैव हड़बड़ी में कुछ भी बोल देता मैं उस टाइम पे। अभी ठहराव है, अभी ही इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही हैज डन एंड नाउ द टॉक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी विविड एंड वेरी लाइक वेरी deep to his heart. He understands where he is, what he's doing, and he understands how he affects the Indian youth and the mindset of the elderly. जो 300 लोग काम करते हैं, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी फैमिलीज़ की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस टीआरएस के रीस्टार्टिंग फेज़ में जितने लोगों ने अब तक हमें सपोर्ट किया, उन सारों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हो सके तो आपके दिल में मेरे लिए प्लीज़ जगह फिर से बनाना। It's not about that. Matlab, I can understand where he's coming from, but I don't think this is necessary. I think people still will like him for the person that he is. I think his guests will even like support and like him because he seems to be a genuine guy, right? So it's fine. This was not of course in an apology it's needed for him to say this, but I think general public के हिसाब से the youth, the people who genuinely like subscribe to the entire YouTube culture, I think people have forgiven him and I think people are with him at this point. What I would say is like if I can give a professional advice from my side as a content producer, I would say I would like not let him do podcasts for a few months. Abhi, for the best strategy that can be for Ranveer Allahabadiya is to not just absolutely not do podcasts, just not like produce a show, is what I'm trying to say. I have seen Logan Paul make a comeback. I have seen Andrew Tate make a comeback. And they have come back properly. And they are here to stay now. So, like, ये तो तब भी एक अच्छा इंसान है. तो I would, if I can, I would suggest कि अभी stop the show altogether for a couple of months
एंड मेक कंटेंट दैट इज मोर रिलेटेबल टू द ऑडियंस. मेक कंटेंट जो सामने वाले को समझ आए. जस्ट ओपन योर कैमरा, स्टॉप दिस हाई प्रोडक्शन थिंग, जस्ट टॉक टू द ऑडियंस. Just be yourself for a couple of months, win their hearts back, and then start uh, your daily show. Because if he starts the show, the fun show again, that would that would look like he's just jumping from one controversy and back to his show, well produced show, right into it. And that may look a little childish. That may look a little like क्या कहते हैं उसको, not genuine. I would suggest कि just stop that for a while. Just have your team, talk to your team, and produce videos in which you are more personable, in which you are like you can connect to the youth more, in which you can connect to the audience more. The things that can be relatable. Where he started from. उन चीज़ों पे if he goes back, if he just talks to the people, I think that would be a good comeback for him. एक और चांस देना. मुझे कंटेंट क्रिएशन से बहुत ज़्यादा प्यार है, पॉडकास्टिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है. हमारे देश की हिस्ट्री, कल्चर एक्सप्लोर करना, ये मेरी पैशन है. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग थ्रू माय जॉब, और मुझे बस वही करना है. जब इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी ना मेरी मेंटल हेल्थ, तब मेडिटेशन, साधना, प्रेयर की वजह से ये भी पता चला कि एंड में आपके साथ सिर्फ ऊपर वाला है. That's a lesson for you. Like, if you think you are going down a spiral ever in your life, just sit down, meditate, write down your thoughts, and be with yourself. Be with yourself, because yourself is the only person that is going to stay with you in the longer term, in till the end. There will be your well-wishers, there will be your family, there will be your friends, but till the end of your life, it's only you. It's only you who's going to be by you and the God you believe in. So just be with yourself. Just understand that you and your body and your mind are the only ones that you have, and that's it. In आपस में चलना. You have to be in harmony with yourself. इसलिए इस फेज़ को भी मैं एक पनिशमेंट की तरह नहीं देख रहा हूँ, एक लर्निंग की तरह देख रहा हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देख रहा हूँ. Fair. अगर ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है अब तक, तो इस फेज़ को भी मैं एक ऊपर वाले का तोहफा ही मानता हूँ कि इट केम इनटू माय लाइफ फॉर द सेक ऑफ माय ग्रोथ एंड माय ट्रांसफॉर्मेशन. Fair. अब आई एम जस्ट गोइंग टू लेट माय वर्क स्पीक. मैं बस अपने काम को बात करने दूंगा. बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं. मेरी पूरी टीम ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी पूरी फैमिली ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया. टीम में से एक भी इंसान ने रिज़ाइन नहीं किया इस पूरे फेज़ के थ्रू. Fair. हमारे जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएट्स हैं, बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उन सारों ने सपोर्ट किया. फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा. एंड आई होप कि आने वाले 10, 20, 30 सालों में हम एक्चुअली देश को हमारे कंटेंट के थ्रू और हमारे काम के थ्रू बदलें. Okay, about that. Like, of course, 100% I am also supporting him, and everybody in the YouTube circle is supporting him. We want him back. We do not want to lose a creator within from ourselves. That's number one. Number two, like, chill with the entire देश को बदलने वाला situation, क्योंकि उसके बाद उसकी वजह से ही ये हुआ है. So just chill with your responsibilities. Just chill with this entire shenanigan, and just focus on who you are, the kind of content you want to make, and be consider your audience to be your like extension. Make them into your family. Welcome them, the ones who are still here. Unko, those are your core audience. Those are going to stay with you for the rest of your life. So just that. Stop with this entire narrative of मुझे देश को बदलना. कोई ज़रूरत नहीं. Just be with yourself. Just be with your audience. Just be there is what I'm trying to say. पॉडकास्ट की क्वालिटी बढ़ते जाएगी और हर हफ्ते पहले जैसे ही 4 एपिसोड रिलीज़ होंगे. मुझे कंटेंट क्रिएशन से बहुत ज़्यादा प्यार है, देश के कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार है, और इन दोनों वजहों से इस फुल स्टॉप के बाद मैं एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. आई होप कि आप हम सारों को, मेरी पूरी टीम को, मुझे इस नए फेज़ में सपोर्ट करें. बस ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू एंड लव यू ऑल. अब से आपको एक नया रणवीर दिखेगा द रणवीर शो पर. द पॉडकास्ट विल रिटर्न वेरी सून. ठीक है, good message from him, and he's genuinely sorry. Like,
I can sense it in his voice, in his eyes. He's genuinely sorry and he wants to make a comeback. He's desperate to make a comeback for himself, for his family, for his finances, and for his team. Team is a crucial part in this entire YouTube production scenario. But khair jo bhi ho, I would say from like my own personal opinion, just like chill and come back as your old self. Don't have to be a new self, just be your old self, just be happy, just be more relatable. That's all. मिलता है अगले वीडियो में. Bye.